العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جلد سنی جائے، نواز شریف کی درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی پر مشتمل بینچ تشکیل۔ وکیل کے ذریعے دائر درخواست میں نواز شریف کا کہنا تھا عدالت نے سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ سننے کی ہدایت کی۔ بل گیٹس کی پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش، وزیر اعظم سے صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن اور سربراہ عالمی ادارہ صحت کی ملاقات۔ وزیر صحت عامر کیانی اور معاون بابر عطا بھی شریک ہوئے۔ صدر فاؤنڈیشن نے وزیر اعظم کو بل گیٹس کا خط پیش کیا۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں پولیو اور صحت عامہ کے شعبوں میں سرمایہ کاری جاری رہے گی۔ تمام ادارے آزاد، اربوں لوٹنے والے سیاستدان پہلی بار قانون کی گرفت میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو، کہا 4 ماہ میں پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوا، امداد اور قرضے مفت نہیں ہوتے، بھاری قیمت چکائی۔ مودی الیکشن جیتنے کے لیے بھارت میں پاکستان مخالف جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل شفافیت نہیں، بات چیت میں ہے۔ دورے لاہور کے بعد میئر ہونسلو بورو واپس برطانیہ پہنچ گئیں۔ دورے کے دوران میئر لاہور سے تجربات شیئر کیے اور پاکستان کی سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ سمیہ چودھری کی نائٹی نیوز سے گفتگو۔ مانچسٹر میں گورنر پنجاب چودھری سرور کے اعزاز میں عشائیہ، پاکستانی کمیونٹی کے اہم شخصیات شریک۔ تقریب کا انعقاد یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم نے کیا۔ بولٹن میں امن کانفرنس کے انعقاد، آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن پیر سید محمد علی رضا بخاری کی شرکت۔ شرکاء کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت، اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ برمنگھم میں صوفی میوزیکل نائٹ کا اہتمام، پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز کی بھرپور شرکت۔ پاکستان سے آئے صوفی سنگر سہیل سلامت نے سر بکھیرے تو حاضرین نے خوب داد دی۔ کسی کی آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی، یعنی برائی کی نیت سے کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے، بیہائنڈ ہیم اگر آپ بیان کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ غیبت، بیک بائٹنگ۔ دعوت اسلامی برطانیہ کے زیر اہتمام لندن میں فکری نشست کا اہتمام۔ برطانیہ کے دورے پر آئے دعوت اسلامی کے نائب امیر حاجی عمران اتاری کا خصوصی خطاب۔ کوونٹری میں المدینہ جامع مسجد اینڈ انسٹیٹیوٹ میں روحانی محفل، معروف نعت خواں اویس رضا قادری نے خوبصورت الفاظ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔
स्कॉटलैंड के शहर डंडी की जामे मस्जिद ताजदार मदीना विक्टोरिया में सालाना उर्स गौसे पाक की महफिल, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। ओल्डहम में हुजूर कलंदर बाबा औलिया के उर्स मुबारक के हवाले से तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी, खातीन और बच्चे भी शरीक हुए। एलिट डेविस क्रिकेट लीग के 30वें सीजन के आगाज से पहले इंतजामात का जायजा, मुंतजिमीन ने इजलास बुला लिया, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत, टूर्नामेंट का बरवक्त इनेकाद यकीनी बनाने का ऐलान। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। जी हां, अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस्तदा सुन ली। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। और वकील के जरिए दायर दरखास्त में नवाज शरीफ का कहना था कि अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ सुनने की हिदायत की। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जल्द समाअत के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई, मगर मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ सुनी जाएगी, लिहाजा अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी समाअत मुमकिन हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 2 रुकनी बेंच कल दिन 12 बजे केस की समाअत करेगा। फयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का वजीर आजम को खत, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की पेशकश कर दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हुकूमत मुल्क में सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। वजीर आजम की तवानाई काबीना कमेटी को आवाम के लिए बिजली और गैस की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। आइए देखते हैं इसी पर उमर जट की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान से सरबराह आलमी इदारा सेहत और सदर बिल गेट्स फाउंडेशन ने मुलाकात की। सदर बिल गेट्स फाउंडेशन ने वज़ीर आज़म को बिल गेट्स की जानिब से लिखा गया खत पेश किया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। मुल्क में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में बिजली और गैस की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में बिजली और गैस की सूरत हाल की बेहतरी और बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और मुनव्वरा बीबी की मुलाकात में बलोचिस्तान से मुतालिका तरक्याती अमूर, पानी की फराहमी और बेरोजगारी जैसे मसाइल और सूबा बलोचिस्तान में पार्टी के तंजीमी अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबा बलोचिस्तान की आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। इन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इन अहम मुलाकातों के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू भी दिया, जिस दौरान वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। दहशतगर्दी से पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में नाकामी पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मुज़ाकरात अफगान और कश्मीर मसले का वाहिद हल है। इस इंटरव्यू में मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मसला कश्मीर हो या भारत के साथ मुज़ाकरात, पाकिस्तानी मईशत की बात हो या खारजा पॉलिसी की, अफगान अमन हो या अमरीका के साथ ताल्लुकात, इमरान खान ने सब वाज़ेह कर दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। Pakistan is not going to fight anyone's war. It's not going to be treated like a hired gun, paid to do someone else's job. So you have to pay a price. And Pakistan paid a heavy price. 80,000 Pakistanis died. गुज़श्ता साल कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत बहुत बढ़ गया। कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से कश्मीरी नौजवान देखने से माजूर हो गए। In Kashmir, the Indian brutality in the last year has just been mind-boggling. They have been killing, shooting at boys, blinding them with pellet guns. I have already asked the Indian government, specifically Prime Minister, that look, you come one step towards us, we'll come 2 steps towards you. इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से हमें भारत की जानिब से सिर्फ मायूसी मिली, जिसकी बड़ी वजह भारतीय इंतखाबात हैं। Unfortunately, we have been rebuffed so far by India. And I feel the reason is the Indian elections in April. 2 nuclear-armed countries should never think of sorting out their differences through war. It's suicide. अफगानिस्तान मसले पर बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि खुशकिस्मती से सब ये जान चुके हैं कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के दूसरे हमसायों के साथ मिलकर अमेरिका और अफगान तालिबान को सियासी हल के लिए मुज़ाकरात की मेज तक ला सकता है। मजीद खबरों में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के इलाके हंसलो बारू की मेयर समिया चौधरी ने कहा है कि हालिया दौरे के दौरान मेयर लाहौर से अपने तजुर्बात शेयर किए और तवक्को है कि तजुर्बात के तबादले से कई मामलात में बेहतरी आएगी। दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की दीगर सियासी और समाजी शख्सियात से भी मुलाकातें की थी। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हंसलो बोरो की जो मेयर हैं समिया चौधरी साहबा, वो मौजूद हैं। ये अभी पाकिस्तान का दौरा भी करके आई हैं और इससे भी बड़ी बात है कि जो लंदन की न्यू ईयर की पहले दिन की परेड हुई थी, उसमें हंसलो बोरो का एक बहुत बड़ा फ्लोट भी था। इन्होंने उस पर भरपूर शिरकत की। तो पहले तो उनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान का ये विज़िट करके आई हैं, उसका मकसद क्या था और इनको क्या वहाँ पर पॉलिटिकल चेंज नज़र आई। जी समिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरा रिसेंटली पाकिस्तान का टूर था बहुत अच्छा था। बहुत नाइसली लोगों के साथ जो है हमारा उन्होंने बहुत तावन किया पाकिस्तान में। मेनली जो हंसलो लंदन बॉरो ऑफ हंसलो है वो टाउन ट्विन है विद लाहौर। सो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड के साथ विजिट था। फिर देन वी हैड विजिट विद सीएम पंजाब, गवर्नर पंजाब, ऑल द जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एंड आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली वेल, बट दे डू नीड little bit of time, and alhamdulillah seeing here overseas Pakistanis are really supporting them as well. So overall Pakistan was really nice, and I'd like to just say thank you very much to every Pakistani, every authority in Pakistan that they've supported us there. अच्छा ये बताएं कि जब आपने लाहौर के सारा ज़ाहिर दौरा किया, वहाँ पर आप जो आपके अपना मेयर्स वगैरह हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई, तो कैसा लगा आपको जो लाहौर की सफाई का? और आई थिंक काफ़ी बेहतर हो चुका है। मेयर ऑफ लाहौर से भी हम मिले, डिप्टी मेयर से भी मिले, बाकी के भी जो मेयर है मेयर ऑफ इस्लामाबाद से भी मेरी मुलाकात हुई। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल एंड काफ़ी बेहतर हो रहा है सफाई को लेके। वो सफाई तो कहते हैं ना कि घर से शुरू होती है, कि अपने घर को पहले क्लीन रखना शुरू करो तो अपने कंट्री, अपनी मुल्क और अपने जो टाउन्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं। आई थिंक हमारी कौम को भी चाहिए है कि थोड़ा बहुत अपने तजुर्बात से उनको कुछ बताया कि किस तरह जो है वो बेहतर मैनेजमेंट हो सके। बिल्कुल जी, हमने अपना जो भी हम लंदन बॉरो ऑफ हंसलो में जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं हमने उनके साथ शेयर किया, एंड दे रियली अप्रिशिएटेड इट, एंड होपफुली दे विल बी लुकिंग इनटू इट हाउ दे कैन इम्प्रूव द सर्विसेज इन लाहौर। अच्छा हंसलो, मैंने समिया देखा कि लंदन में बहुत सारी बोरोज हैं, लेकिन जो हंसलो बोरो का जो वहाँ पर फ्लोट था डे परेड लंदन में, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। तो कैसी आपने तैयारी की थी, कैसा लगा आपको जब इतनी अप्रिसिएशन मिल रही थी? आई थिंक मैं कुछ चंद ही मेयर थे ऐसे जिन्होंने वो की थी लंदन मेयर्स न्यू ईयर परेड पे।
एंड बड़ी लंबी वॉक थी एंड चिल्ड्रंस हमारे जो फैल्थम आर्ट्स के लोकल हमारा ग्रुप है उन्होंने बहुत मेहनत की थी बच्चों ने उसके लिए। मैं तो पाकिस्तान गई थी, देन वापस आई, रिहर्सल किया उनके साथ एंड हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉन £5,000 टुवर्ड्स आवर चैरिटी, जो 2 चैरिटीज़ को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी एंड जो हमारा लोकल ग्रुप है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था कि हम जो है कुछ अपनी चैरिटीज़ के लिए विन करें। लेकिन आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डे आई हैव एवर हैड एज लंदन मेयर प्राइड। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जो हंसलों की मेयर थी समिया चौधरी साहबा, उन्होंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान दौरे के दरमियान जो है वो अपनी यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वहाँ की मैनेजमेंट से, वहाँ के मेयर से शेयर किया और इनको तवक्को है कि पाकिस्तान में जो कौंसल लेवल पर जो है वो पहले से जो है सूरत हाल वो बेहतर होगी। जी। लंदन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डैम फंड रेजिंग के सिलसिले में एक तकरीब हुई जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में असद कैसर और बरतानिया की नामवर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुईं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान अपनी रिपोर्ट में। यूनिवर्सल केयर फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम सलाओ के मुकामी कम्युनिटी हॉल में डैम के लिए फंड रेजिंग की तकरीब हुई जिसमें स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर, मेयर हौंसलो बारो समिया चौधरी, साबिक मेयर सलाओ इशरत शाह, मेयर अंसर हुसैन समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। असद कैसर की पाकिस्तान से वापसी से कबल होने वाली इस तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो इमरान खान की जानिब से डैम फंड्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब के ऑर्गेनाइजर सरदार हयात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में तरक्की की ख्वाहां है। बाद अज़ां तकरीब में करतारपुर बॉर्डर खोलने की खुशी में केक काटा गया जिसमें मेंबर पार्लियामेंट मनजीत सिंह ने खुसूसी शिरकत की और वजीर आजम इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया। डैम फंड्स के लिए लोगों ने दिल के साथ जेबें भी खोल दी और चंद घंटों में 20,000 पाउंड की रकम जमा कर ली। बोल्टन में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की गई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बुल्टन के मुकामी रेस्टोरेंट में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली पीर सैयद मोहम्मद अली रजा बुखारी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। आज मीडिया का दौर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की बात की जाती है, बिल्कुल है, लेकिन कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज़ पर भी हिंदुस्तान ने बंदूक तान के पाबंदी लगाई हुई है। तो मीडिया की एक्सेस किस हद तक है आपके सामने है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेट और दीगर किस हद तक है आपके सामने है, वहाँ एक्सेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कितनी आपके सामने है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन को कितना जाने की इजाज़त है आपके सामने है। ये भयानक तस्वीर है कश्मीर की। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर हल करने में अपना किरदार अदा करे। भारत ने इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जुल्म तशद्दुद की है, खून शाम सियारात मुसल्लत कर रखी है। वहाँ पर किसी की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू महफूज नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आज वक्त का तकाजा है कि सारे कश्मीरी इकट्ठे हों और मुख्तलिफ जमातों के जो अज़ाइम हैं वो अपनी जगह रखें और काज़ कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना ये वक्त की ज़रूरत है। मसला कश्मीर इस वक्त बहुत नाजुक माहौल से गुजर रहा है और कश्मीरियों को अपनी जंग खुद लड़नी है, इसलिए कश्मीरी आगे आएँ। जो तारकीन वतन हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं वो अपना रोल प्ले करें और आगे आएँ ताकि हम मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर कर सकें और बता सकें दुनिया को कि कश्मीर में जो जुल्म जबर हो रहा है उसको रुकना है। स्टेट टेररिज्म इंडिया जो कर रहा है उसको हमने बंद करना है और कश्मीर को इंशाअल्लाह ताला आज़ाद करवाना है। आज हमारी ये कश्मीर के हवाले से बड़ी अच्छी एक महफिल हुई और बहुत से मामला जो हमारे कश्मीरी हुकूमत के हवाले से जो हमारे साथियों को नहीं पता है, अली रज़ा बुखारी साहब ने आके हमें बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त कश्मीर के लिए किस स्टांस पे क्या बात कर रही है। तो मैं तो सराहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर इशू को लेके आगे चल रही है। हमारे दीगर मकामात पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं
اس میں آج کا یہ کانفرنس بڑی اہم ہے، سنگ میل ثابت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس نیشنل نیریٹو کی پروموشن کے لیے جو کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرتا ہے، ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، سیکٹریزم کے خلاف ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اور مائنارٹیز کی رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. تو ہم اس بات کو، اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، پوری قوم آگے بڑھ رہی ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنسز بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گی. پچھلے 70 سالوں سے ظلم کی چکی میں پستے کشمیری عوام کی نظریں آج بھی اقوام عالم اور بالخصوص اقوام متحدہ پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کب انہیں اس ظلم اور بربریت سے چھٹکارا دلوائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، بولٹن. برمنگھم میں صوفی میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ دیگر کمیونٹیز نے بھی بھرپور شرکت کی. پاکستان سے آئے صوفی سنگر سہیل سلامت نے سر بکھیرے اور لوگوں سے خوب داد وصول کی. نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی رپورٹ کریں گے. برمنگھم میں نئے سال کے حوالے سے سریں بکھیرتی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گلوکاروں نے صوفی ازم پر مبنی کلام گا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی. چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں. شو کے منتظمین کا کہنا تھا کہ صوفی نائٹ کا مقصد اردو زبان اور صوفی ازم کو فروغ دینا اور اس کے بارے میں دیگر کمیونٹیز کو آگاہ کرنا ہے. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں برمنگھم گرانڈ اوکیشنز میں. یہاں صوفیانہ کلام کی محفل تھی اور پرفارمنس کر رہے تھے سہیل سلامت. بہت ہی اچھا پروگرام تھا. ایسے پروگرام بہت زیادہ ہونے چاہیے اس لیے کیونکہ اس سے پاکستانی کلچر کی اویئرنیس بڑھتی ہے اور لوگوں کو صوفیانہ کلام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. جو آنے والی اولادیں ہیں ان کو ہم ان سے کم سے کم نالج ٹرانسفر کریں کہ صوفیزم کیا ہے. ہمارے کئی اور عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہی اولاد کو ہم سے چھین رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنز ان کی جو بالکل غلط ہے اور یہ کسی حساب سے اسلام نہیں ہے. یہ انہیں جاننا چاہیے کہ یہ ایسے اس ٹریڈیشن صوفی ٹریڈیشن سے جتنا بھی ہندوستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس کے فارس تک جو کور کیا گیا ہے وہ صوفیزم سے حساب سے کیا گیا ہے. اصل دین یہی ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین رحمت لوگوں تک لے کر آئے وہ تھا ہی دین رحمت. اس میں تشدد نہیں تھا، اس میں نفرت نہیں تھی، اس میں فرقہ وارث نہیں تھی. یہی کام میرے غریب نواز نے کیا، یہی کام باقی صوفیاء نے کی. صوفی سنگر استاد سہیل سلامت، MP خالد محمود اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ کرام کے کلام کے ذریعے جو پیغام جاتا ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے. بہت اچھے ہیں، فنکار ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان کو جانتے ہیں اس لیے، اور بڑا میٹھا اور بڑا پیارا انہوں نے گایا، اس لیے ہم یہاں سبھی آئے. ہمارے فرینڈ سارا سرکل یہاں پہ پنجابی ان کو سنتے ہیں، کافی اچھا ہے. مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل میں صوفیزم جو ختم ہو رہا ہے اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف لے کے جائیں. ان کو جو ہمارے کلام ہیں، صوفیہ کلام ہیں، ان کو انٹروڈکشن کی ہو. بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ آ کے، اور جتنے سریلے یہاں کے برمنگھم کے لوگ ہیں، خوبصورت لوگ، خوبصورت سننا، اور بہت ہی مجھے مزہ آیا. اور میں چاہوں گا کہ ایسے جو پروگرامز ہیں ہمیشہ ہوتے رہنے چاہیے. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی محفلیں مسلم امہ کے بارے میں پھیلے منفی تاثر کے سدباب کا باعث بنتی ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم جادو کوئی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی. مزید خبریں میں شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. دعوت اسلامی برطانیہ کے زیر اہتمام لندن میں فیضان مدینہ کی جانب سے فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا. برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے دعوت اسلامی کے نائب امیر حاجی عمران اتاری نے خصوصی خطاب کیا. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے.
भाई किसी की आपने उसके पीठ पीछे बुराई की, यानी बुराई की नीयत से किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे, बिहाइंड हिम अगर आप बयान करते हैं, दैट इज कॉल्ड गीबत, बैकबाइटिंग। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक्री नशिस्तों और मदनी महफिल का सिलसिला जारी है। बुरा फील करेगा और ये गीबत है। अब गीबत उस वक्त है जब इसको आपने बुराई की। अच्छा, अब एक मादरत के साथ थोड़ा सा टॉपिक चला है तो मैं इसको कंप्लीट कर। लंदन के नवाही इलाके लेंके में दावत इस्लामी के मरकज़ फ़ज़ान मदीना में दावत इस्लामी की शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अतारी ने मिसाली खानदान के मौजू पर रोशनी डाली। इस मौके पर निगरान शूरा हाजी इमरान अतारी का कहना था कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाना घर के सरबराह की जिम्मेदारी है। और बुक्स बैठ जाएगा, वो भी मरा नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई छोटा आदमी किसी बड़े के साथ ये कर दे, एक तो वो अव्वल ही उसको उधर के बराबर की बेइज्जती करता है। महफिल में शरीक दीगर अफराद ने इस मौके पर दीनी इज्तिमात को रूह के लिए बाइसे तस्कीन करार दिया। Delivered a sunnah inspired bayan is really helpful to the community and may Allah give them a long life. यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है कि उनको मैसेज पहुंचता है, पहले नहीं पहुंच रहा था, तो अब ये दावत इस्लामी की वजह से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी इस्लाम की इकाई के बारे में, तो हकूक़ के बारे में पता चलेगा, इस्लाम की तालीमात में भी इजाफा होगा। बहुत अच्छा, एक तो हम लोगों को यहाँ पे एक मौका मिला है साथ इकट्ठे आने का, और एक ये ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को जो आगाही हो फैमिली के बारे में, और बहुत अच्छे बयान दिया है उन्होंने, और ये बुक्स के बारे में बताया क्योंकि उन्होंने बुक्स बताई है और वो जो है कि वो उसको पढ़ें और उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी जो है ना उसके मुताबिक चलाएँ, और ये बहुत ही बच्चों के लिए स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये अगर आएँ और इनको सीखें, और ऐसी महफिलें अटेंड करनी चाहिए और पेरेंट्स को इन फैमिली में बच्चों को लेके आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने आइडियल मुस्लिम फैमिली के बारे में जो है हमें नसीहतें की कि कैसे एक आइडियल मुस्लिम फैमिली बनाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले तो जो शोहर है उसको भी एक आइडियल नेक मुसलमान मर्द होना चाहिए, औरत जो है वो भी एक नेक औरत हो, तो इंशाल्लाह फिर आगे जो औलाद है वो भी नेक बनेगी, तो इंशाल्लाह एक आइडियल मुस्लिम फैमिली जो है वो वजूद में आएगी। महफिल के आखिर में दुरूद सलाम पेश किया गया। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। कोवेंट्री में अल-मदीना जामिया मस्जिद एंड इंस्टीट्यूट में एक रूहानी महफिल का इनेकाद हुआ। तकरीब में हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात पर रोशनी डाली गई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। अल-मदीना जामिया मस्जिद एंड इंस्टीट्यूट में रूहानी महफिल का इनेकाद। मारूफ नात ख्वां अलहाज अवैस रज़ा कादरी ने ख़ुसूसी शिरकत की और सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। या रसूलल्लाह, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्ब खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। महफिल से अल्लामा नबील अफसल कादरी और हाफिज अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी ने खिताब किया और कहा कि गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान बुजुर्ग माई बहनें ख़वातीन भी हाजिर हुई है। बड़ी मोहब्बत का एक माहौल उन्होंने पैदा किया, ज़ौक़ भी था, जज्बा भी था और नौजवानों की भरपूर शमूलियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब ने खूबसूरती के साथ कलाम सुनाया, हमारे सब के कुलूब व अज़हान मुनव्वर हुए और हम पैगाम यही देते हैं कि सरकार गौसे पाक के दामन के साथ जो वाबस्ता हो जाए वो दुनिया में भी फलाह पाएगा और आखिरत में भी फलाह पाएगा। तकरीब में शरीक सनाख्वां हज़रात, उलमा और दीगर अफराद ने महफिल के इनेकाद को खूब सराहा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर कोवेंट्री में मुझे मदऊ किया। यकीनन ये मोहब्बत है, प्यार है, कुछ तो होता है जिसके बायस लोग बुलाते। मैं इस इदारे में
जब पहली मरतबा आया था तो ये इदारा तामीर नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने शामियाने के अंदर महफिल की थी सख्त सर्दी का और फिर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन की मैंने रिक्वेस्ट की थी। आज 3 साल हो गए ये जामिया और ये इदारा जो है कायम हो चुका है और अभी थोड़ा कुछ मामला रहते हैं तो मैं अपील करूँगा कि इसमें मज़ीद बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज का प्रोग्राम बड़ा ही रौनक और बड़ा ही रूहानी प्रोग्राम था, बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। आप खुद देख रहे थे लोग जो माशाल्लाह पढ़ रहे थे। मेरा वक्त था 1 घंटे का, लेकिन पढ़ता रहा, मुझे वक्त का एहसास ना हुआ, तकरीबन 1.5 घंटा पड़ गया। तो यह है कि अच्छी बात है, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला फिर हमें ये सादत अता फरमाए। आज चूँकि 11वीं शरीफ के सिलसिले में ये प्रोग्राम था तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तालीमात हैं, आपका जो अमन का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम है जो आपने मखलूक खुदा तक पहुँचाया, औलियाए कामिलीन के नक्शे कदम पर चल के बिलखुसूस सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर तालीमात पर अमल किया जाए तो ये जो मुआशरा है वो हकीकी मानों में अमन और इस्तेहकाम का गवारा बन सकता है। जवान हर उम्र के लोग सब में शामिल होकर इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। अल्लाह ताला मज़ीद ऐसी महफिलों का एहतमाम करने में हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बर्मिंघम में पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी के उर्स मुबारक के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें उर्स की तैयारियों से मुतल्लिक तफसीलात बताई गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीर सुल्तान अल आरिफीन ने कहा कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने फ़रोग़ इस्लाम और तरवीज इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक्फ की। उनका फैज़ान है कि आज दुनिया भर में दीन की खिदमत का काम हो रहा है। दुनिया भर से अक़ीदतमंद उर्स में शरीक होंगे, जबकि मुमताज़ आलिम दीन मशाइख अज़ाम और खुलफ़ा शेख अल आलिम की हयात और खिदमात पर रोशनी डालेंगे। उर्स का एहतमाम 3 फरवरी को मरकज़ी जामे मस्जिद घमगोल शरीफ में किया जाएगा। स्कॉटलैंड के शहर डैंडी की जामे मस्जिद ताजदार मदीना विक्टोरिया में सालाना उर्स गौसे पाक की महफिल का इनेकाद किया गया जिसमें उलमा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। जामे मस्जिद ताजदार मदीना विक्टोरिया रोड पर इलामा सैयद इजाज हुसैन शाह काज़मी की ज़ेर निगरानी हजूर गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर शाह जिलानी के उर्स मुबारक की महफिल का इनेकाद किया गया। तकरीब से खताब के दौरान इलामा मोहम्मद हनीफ साकी और दीगर ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की हयात मुबारक और करामात पर रोशनी डाली। अल्लाह करीम शहनशाह बगदाद दे तसर्रुफात मुजाहिदात रियाजात दा सदका सारे मुसलमानों नूं आपस विच इत्तफाक इत्तेहाद मुहब्बत दी दौलत नसीब करे ते जिहड़े औलिया अल्लाह जिन्हां ने सानू सिरात मुस्तकीम दा रस्ता दसिया अल्लाह करीम उन्हां दे रस्ते ते सानू चलन दी तौफीक अता फरमाए। आज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा जो डंडी की जामे मस्जिद ताजदार मदीना में इनेकाद पजीर, इसमें हज़ूर सैयद सक़लैन हज़रत गौसे आज़म शहनशाह बगदाद के ज़िक्र के हवाले से ताबीर था और हज़रत गौसे पाक का यही पैगाम था, यही अहले सुन्नत पैगाम दे रहे हैं कि औलिया अल्लाह का यही मिशन है कि लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत और लोगों के अंदर रवाबत कायम करने के सिलसिले को तरवीज दी जाए। बेडफोर्ड से आए हुए सना खान मुस्तफ़ा अब्दुल कादिर नुशाही ने गुलहाए अकीदत पेश करके अहले ईमान के क़ुलूब को मुनव्वर कर दिया। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में बाबरकत महफिल के आखिर में मौलाना इजाज हुसैन शाह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शुरका के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया था। ओल्ड हैम में हजूर कलंदर बाबा ओलिया के उर्स मुबारक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में ख़ातीन और बच्चे भी शामिल थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फकीर
حضور کلندر بابا اولیا کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے اولڈھم کے مقامی ہال میں ایک روحانی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سلسلہ عظیمیہ کے روحانی پیشوا خواجہ شمس الدین عظیمی نے کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شعور اور لاشعور کے درمیان پردے کو ریاضت اور کوشش سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی توانائی ہے کہ جس کی وجہ سے پیدائش کے پہلے دن سے موت کے دن تک آدمی ایک چابی بھرے ہوئے کھلونے کی طرح متحرک رہتا ہے۔ تقریب کے آرگنائزر محمد صدیق عظیمی کا کہنا تھا کہ روح اور انسان کے تعلق کو روحانی علم کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہ عرس منانے کے جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی تعلیمات ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ ہمارے قواعد ضوابط میں بھی یہی لکھا ہے اور ہمارے اغراض و مقصد بھی یہی ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی جو روحانی تعلیمات جو روحانی ورثہ ہے اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو ان کی روح سے واقف کرایا جائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ روحانی علوم تربیت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ برطانیہ میں ایسی روحانی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ I really enjoy Urs and I really like Razamaka, so the food was very nice, inshallah, and feel really happy, inshallah. I love Urs. I enjoyed Urs because I really like the foods and everything. یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہماری روح کو انرجی ملتی ہے اور بھی بہت سارا نالج جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طرح کے فنکشن اس ملک میں جو ہونے ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تقریب میں بچوں اور نوجوانوں کو روحانیت اور اولیاء اللہ کی اسلام کے حوالے سے کی جانے والی خدمات، اسلام کے اصلی پیغام اور تشخص کے حوالے سے خصوصی لیکچرز بھی دیے گئے۔ مزید خبریں میں شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیگر ممالک کی جانب سے عدم تعاون پر امریکہ سے باہر تمام فوجی آپریشنز بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مسلم دنیا پر جنگ مسلط کرنے والا امریکہ کا برسوں بعد غلطی کا اعتراف۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امیر ممالک کی جانب سے ناکافی مالی اور فوجی تعاون پر تمام فوجی آپریشنز شاندار انداز میں ختم کر دیے جائیں گے۔ اپنی ٹویٹ میں ٹرمپ نے مزید کہا کہ جن ممالک میں کئی سالوں سے آپریشن جاری ہے وہاں سے بھی فوج نکال لی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب انہوں نے شام سے 2000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ 2014 سے امریکہ کی قیادت میں 70 ممالک کا اتحاد شام اور عراق میں داعش کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن بھارت میں شاید گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ جی ہاں، کون نیوٹن، کون آئنسٹائن؟ بھارت کے بعض نام نہاد سائنسدان انسانی تاریخ کے ان دو عظیم ترین سائنسدانوں کی تھیوری سے انکاری ہیں۔
हिंदू नजरियात को जबरदस्ती मनवाने की कोशिशों ने उनके लिए जग घसाई का सामान पैदा कर दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। Einstein made the big blunder. Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes. सॉरी न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन। जी हाँ, इन दोनों अजीम साइंसदानों से मौसरत की जरूरत भारत के चंद नाम नेहाद माहिरीन तालीम के बेसरोपा दावों के बाइस पेश आई है, जिन्होंने इन दोनों नाबगा रोजगार साइंसदानों के पेश करदा नजरियात को अपनी मजहबी किताब के साथ परखते हुए ऐसे मुजहिका खेज दावे कर डाले कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 3 से 7 जनवरी तक जारी रहने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावे सामने आए कि खुद साइंस भी मैं हैरत हो गई। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक साइंसदान डॉक्टर के कृष्ण ने कहा कि आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों गलत थे और दरियाफ्त होने वाली कशिशे सकल की लहरों का नाम नरेंद्र मोदी लहरें रखना चाहिए। Einstein made the big blunder. Even though he's a genius, I'm telling he made a big blunder. आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नगेश्वर राव ने लंबी छोड़ते हुए कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताब रामायण में एक बादशाह का जिक्र मिलता है जिसके बाद 24 एग्जाम के हवाई जहाज थे और वो उन्हें श्रीलंका के हवाई अड्डों पर उतारा करता था। Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes. और सुने, एक और भारतीय यूनिवर्सिटी सरबरा ने कदीम हिंदू तहरीरों का हवाला देते हुए कहा कि कदीम हिंदुओं ने हजारों साल पहले स्टीम सेल पर तहकीक की थी। दूसरी जानिब साइंसदानों और नाकदीन का कहना है कि भारत में पहले भी ऐसे अजीबोगरीब दावे होते रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अली डेविस क्रिकेट लीग के 30वें सीजन के आगाज से पहले इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास की सदारत लीग के चेयरमैन सलीम यासीन ने की। इजलास में खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया की सबसे बड़ी और मशहूर एलीट एंड डेविस क्रिकेट लीग के 30वें सीजन की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत लीग चेयरमैन सलीम यासीन ने की। सलीम यासीन का कहना था कि ये लीग का 30वां साल है और इस साल पहले की निस्बत ज्यादा इनामात होंगे। कमेटी नई बनाई गई है इसलिए कि 30th एनिवर्सरी को हम बड़े ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं इस साल, और उसमें हमने ये किया है कि टीमों को कैश इनाम भी दिया जाएगा। हम यहाँ पे आए थे एली डेविस की 30th क्रिकेट लीग एनिवर्सरी के सिलसिले में जो इस साल हमारी होने जा रही है। मैं सलीम यासीन साहब की काविशों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जब हम लोग ये समर में क्रिकेट का सीज़न स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सी कोई मिस्टेक्स होती हैं, वो इस सिलसिले में ये सीज़न से पहले हम इकट्ठे होते हैं, तमाम कैप्टन्स को और कमेटी मेंबर्स को बुलाया जाता है। ये 30th ईयर ऑफ एली डेविस, सलीम यासीन साहब बहुत मेहनत करते हैं। सो दिस ईयर द वर्कलोड हैज़ बीन delegated to various people. एलीट एंड डेविस लीग के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर आमिर खान ने कहा कि इस साल रमजान में एलीट एंड डेविस रमजान कप भी मुनक्किद किया जाएगा। फ्लड लाइट्स में होने वाले इस टूर्नामेंट में लंदन और बरतानिया भर से टेप बॉल की टीमें शिरकत करेंगी। और गिलगित की वादी बगरोट में सदियों पुरानी निसालो फेस्टिवल की रस्म हर साल रिवायती अंदाज में मनाई जाती है। मौसम सरमा की ये रस्म है क्या, जानते हैं मेराज आलम की इस रिपोर्ट में। गिलगित की सरजमीन कदीम रिवायत की अमीन वादी बगरोट के बासियों ने सदियों पुरानी रस्म निसालों को आज भी जिंदा रखा हुआ है। फरफो गांव में हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में कदीमी रस्म भरपूर जोश खरोश से मनाई जाती है। निसालो फेस्टिवल के आगाज के मौके पर गांव के बच्चे बच्चियां घरों से गंदम की रोटी, मक्खन, मेवे, ताज़ा फल और जानवरों का उबला हुआ गोश्त एक जगह लाते हैं। हर घर से आने वाले इस तोहफे को मकामी जबान में इश्परी कहा जाता है, जिसे नौजवान सबको एक जगह बिठाकर खाने की दावत देते हैं।
निसालों की रस्म के आगाज पर बगरोट के जवानों का जोश व खरोश काबिल दीद होता है। लड़के खुशियां मनाते गांव से बाहर पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं और रिवायती गीत गाकर खूब रक्स करते हैं। गिलगित में बगरोट को कदीम तहजीब और रिवायात का मस्कन समझा जाता है, जहां सदियों पुराने निसालो फेस्टिवल को अब भी रिवायात के ऐन मुताबिक मनाया जाता है। मिराज आलम, नाच न्यूज़, बगरोट वैली, गिलगित। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।